जब हम लोग को लेना Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hey, everybody sing! Sing loudly! Hari Bol! Hare Rama, Hare Rama, 7:15:52 Hare Krishna. Nishekadi samshanantai samskarai samskrito dvijaha indriyeshu kriya yagnan Jnanadipeshu juhvati. Oh, twice one Brahmana, Dvija, gains his life by the grace of his parents through the process of purification known as Garbhadhana. The other process of purification until the end of life and the funeral ceremony Anteshtika is performed. Then due course, a qualified Brahmana becomes uninterested in materialistic activities and sacrifices, but he offers the sensual activities with full knowledge unto the working senses, which are illuminated by the fire of knowledge. So, वेद में बहुत तरह की philosophy दी है. Actually, yesterday we were studying 6 systems of an Indian philosophy. सब आस्तिक हैं. They accept the Vedas. And the first thing begins by Nyaya. गौतमस न्याय. उसमें आदमी फिलॉसफी का फाउंडेशन शुरू करता है. फिलॉसफी मतलब मैं, भगवान और ये दुनिया, इसमें रिश्ता क्या है. तो उसका डिस्कशन के लिए वी नीड टू हैव रूल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड द वर्ल्ड इज एनालाइज वेरी लॉजिकली इन दैट. जस्ट ब्रीफ. द नेक्स्ट पर्सन अंडरस्टैंड्स वैशेषिका. वी अंडरस्टैंड when I look at the world, ये दुनिया है क्या खाने लिए. There are just made of invisible atoms. True, the atom here mentioned is different from the metal atom, but what is it made up of? Small anu. Then the person goes to Sankhya philosophy. When he understands not only there are the small invisible atoms, there is consciousness also, which is different from matter. And after this, the person comes to this as first one was Nyaya, and the next one was Vaisheshika. The third one was Sankhya. Then after this, person develops desire to see. Can I, somehow, the soul can awaken to see the situation that is called yoga, Patanjali yoga. Can the soul can be awakened to see itself different from this world. And then after this is Karma Mimamsa, which gives certain rules and regulations for life in this world. And then finally comes Vedanta, where we come to worship the Supreme Personality of Godhead. So these are the different 6 systems of philosophy. All are called Astikya. All except the Vedas. And then we have like other philosophies which do not accept the Vedic literatures, like Buddhism, where there is no conception of God, which are called Nastikya. Some other religions also. So here
the purpose has been given very clearly. And if you take out the purpose is to go back to Godhead. Therefore, Prabhupada, when he writes in a magazine Back to Godhead, he's making a big revolution. Because even the Vedic followers don't have that. How many ashrams you go, what's the purpose? Surprisingly, ये लक्ष्य है ही नहीं. प्रभुपाद जी मैगजीन बनाए, शुरू में ही लिख दिया बैक टू गॉडेड. जब उन्होंने ये शब्द लिख दिया बैक टू गॉडेड, एक्चुअली वो सारे इन नास्तिकों के ऊपर जा चुके हैं. He has gone above all of these fools. So let us understand this. भगवद गीता में भी एक श्लोक है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना असुराजनः. लोगों को जनरली प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग कुछ मालूम नहीं है. So in many ways it is defined. प्रवृत्ति means generally लोगों का एक टेंडेंसी रहता है मन का, किस तरह मैं ऐसा सिचुएशन एडजस्ट करूं मैं दुनिया में खुश हो जाऊंगा. तो वो हमेशा ऐसा आदमी इंद्रिय भोग की स्थिति एडजस्ट करता रहता है. इसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग. कुछ ऐसा हो जाए, मेरे पास जितना धन हो जाए, मेरे पास ये स्त्री हो जाए, मेरे पास ये घर हो जाए, मेरे पास ये मोबाइल हो जाए, उसी की पूरे दिन रात मनोकामना करता रहता है. उसको फ्री छोड़ दो तो थोड़ा टाइम देखो, उसी में वो प्लान करता रहता है. मेरे को याद है कॉलेज में एक लड़का था, अभी जॉब ही नहीं मिली थी, इंटरव्यू दे के आया, उसके बाद कार ढूंढ रहा था. मैंने कहा क्यों कार क्यों ढूंढ रहा है? सर अगर ये जॉब मिल गई तो सोच रहा कौन सी कार खरीदूंगा. तो ये प्रवृत्ति मार्ग, बेसिकली जानवर, मनुष्य नहीं है वो. उसका लक्ष्य जीवन का बैक टू गॉडेड नहीं है. इतना मिलावट है कि उसको बैक टू गॉडेड का इंटरेस्ट भी नहीं है, खाली दिखावा नाटक. सो दिस वाज कॉल्ड प्रवृत्ति. तो जनरल लोग प्रवृत्ति में ही फंसे रहते हैं. किसी तरह अपना भौतिक स्थिति को एडजस्ट करने में पूरा समाज लगा हुआ, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली भी. पूरा समाज भी अकेले या सब लोग मिलके भी इसी पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह ऐसी स्थिति बन जाए कि पूरी दुनिया खुश हो जाए, मेरा देश खुश हो जाए. लेकिन प्लान है मटेरियल. दैट इज द मिस्टेक. और निवृत्ति थोड़ा अलग चीज़ है, तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है. दैट्स वाई जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बैक टू गॉडेड, he is actually creating a revolution. Nivritti is totally different. He is saying नहीं, no. और ये नो बोलना आसान नहीं है, बहुत जन्म मिलते हैं नो बोलने में. ना वही बोल सकता है जिसको गुरु में और कृष्णा में विश्वास है. जिसको गुरु कृष्ण में विश्वास है वो ना नहीं बोल पाएगा. उसको बोलो मूवी देखोगे, हाँ, और ना नहीं बोल पाएगा. कैसे ना बोलेगा वो? उसमें शक्ति नहीं है, उसको गुरु में विश्वास ही नहीं है. बाहर से गुरु एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो होता है ना दंडवत गुरु, गुरु देखे नमस्कार कर दिया, वो उसका कोई मतलब नहीं है. गुरु मतलब हेवी, गुरु से इतना रेस्पेक्ट है. सरेंडर मतलब रेस्पेक्ट है कि उन्होंने बोला है नहीं करना, नहीं करेंगे, हो गया. जब आदमी इस तरह शास्त्र वैदिक कल्चर में आगे चलता है, उसका द्विजय बोलते हैं, दूसरा जन्म. क्यों दूसरा जन्म? क्योंकि अब उसका इंडिपेंडेंस चला गया. उसने इंडिपेंडेंस, उसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है. प्रभुपाद जी कितने सुंदर जी बोलते हैं, ही सच ए बिग आचार्य. इतना बड़ा मूवमेंट, इतने सारे डिसाइपल्स, विश्व भर में प्रचार, एंड प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स ओके. Says, so kindly my guru brought me under his protection. मैं गुरु की सुरक्षा में चला गया. तो जब आप नियम का पालन नहीं करोगे और जब गुरु के आदेश का ध्यान नहीं रखोगे तो आप एक असुरक्षित एरिया में आ गए. अब आपका क्या होगा पता नहीं. Prabhupada says, if you do not follow me, I cannot save you. So where you go, we do not know. ठीक है. So निवृत्ति मार्ग actually it is only possible not on our own. On our own हम लोग खाली अपनी स्थिति को ही बदलते रहते हैं.
कभी भी आदमी अपने आप में भगवत धाम का मार्ग नहीं निकाल सकता, उसके पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वो कंडीशन सोल है। वो भगवत धाम का मार्ग निकालेगा जब वो गुरु के शब्द को स्वीकार करता है। अब आप भागवत पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी एक परपट नहीं, करोड़ों बारी एक ही चीज़ बोल रहे हैं। जो भी चीज़ शुद्ध भक्ति से इतना भी इंच कम है, प्रभुपाद जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये प्लेटफॉर्म उन्होंने उनकी किताब में दिया। कभी भी प्रभुपाद जी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है। सो कभी भी एक मिडवे नहीं बना देना, अरे ये सब चीज़ बोलते हैं, ये सब कहाँ संभव है, किसने देखा है, नहीं हो सकता। आपका तरीका नहीं चलेगा, एटलीस्ट इस्कॉन में नहीं चलेगा। इस्कॉन में ओनली एक तरीका है, प्रभुपाद वे, करेक्ट, आचार्य का तरीका। ये नहीं मैं ये सब बोलने का चीज़ है, ये सब कहाँ बैक टू गॉड है, ये सब बोलते रहते हैं बड़ी बड़ी चीज़। लोग कौन गया है बैक टू गॉड? तरह तरह के मेरे को मूर्ख मिलते हैं। नहीं, एक ही लक्ष्य है, सुबह से उठ के रात तक सोने तक एक ही लक्ष्य है, बैक टू गॉड। कितना क्लियर प्रभुपाद जी ने मैगजीन को बनाया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल ऐसे लोग हैं, उनको हिम्मत भी नहीं होती सच बोलने की। नहीं, सच बोला तो लोग चले जाएंगे, सच क्यों बोले, झूठ बोलेंगे। खुश रहो, कैसे खुश होना है, मैगजीन का नाम होगा कैसे खुश होना है। मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, प्रभुपाद जी अकेले थे। ऐसे पब्लिक को एंटरटेन करने का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज वेरी क्लियर, यू नो, इफ यू मेक अ डिसीजन लाइक दिस, मूवमेंट का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अरे ऐसा नाम रखोगे तो कौन आएगा, कुछ और रखो। कैसे सॉरी बोलना है, 5 शब्द सीखो कैसे सॉरी बोलना है। ऐसे भी रुकते तो मूवमेंट करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा पाखंड करोगे बहुत मूर्ख इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम सच बोलोगे सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। मूर्खों की भीड़ इकट्ठा करने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इस्कॉन मूवमेंट का ये काम ही नहीं है। मूर्खों को इकट्ठा करो और उसमें आप आपको धोखा भी दे रहे हो, क्योंकि बहुत कम लोग को कृष्णा कॉन्शियस में इंटरेस्ट है, बहुत कम लोग को। लेकिन जिसको इच्छा होती है, अगर आप ये सब बोल के उसको मूर्ख बना रहे हो तो क्या काम कर रहे हो। सो देखिए इधर बहुत क्लियर है। जनरली भगवत गीता में, भागवत में भी नारद मुनि वेद व्यास को डांटते हैं, तुम क्या कर दिया, ये इतना सारा व्याख्या लिख दिया। जुगुप्सुतम, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बहुत बार रिपीट किया। अबॉमिनेबल वेद व्यास, वेद व्यास जिसको डांट पड़ रही है नारद मुनि से, क्या कर दिया तुमने ऐसा। लोग को वैसे ही इंद्रिय भोग की इच्छा है, उसी में तुमने रास्ता दिखा दिया। नहीं, सो एक्चुअली हमारा जो मूवमेंट है दैट इज वेरी वेरी क्लियर, इट इज निवृत्ति मूवमेंट, इट इज नॉट प्रवृत्ति मूवमेंट। किसी भी तरह वी शुड नॉट एनकरेज प्रवृत्ति ऑफ द पीपल। वी डू नॉट एनकरेज, वी टॉक अबाउट निवृत्ति. Nivritti means how to reject sense gratification, not how to maintain sense gratification. There was one person, he went to America. I told this some time ago. And he said, yes, you can have free sex. And after that, you will get fed up of sex. He became very popular, very rich person. This is not our intention. जब हमारा प्रचार हो रहा है या कीर्तन हो रहा है, दिख जाता है, एक्चुअली कीर्तन करने वाले का भी दिख जाता है, जब वो लोगों को खुश करना चाह रहा है या भगवान को खुश करना चाह रहा है, दिख जाता है। उसका मन ये है कि लोग खुश हो जाएं, थोड़ा दक्षिणा दे दें, तो कीर्तन और प्रचार दोनों अलग हो जाते हैं फिर। और उसको बोलते हैं भागवत सप्ताह, जिसने प्रभुपाद जी ने जिसका निंदा किया है लाखों बार अपनी किताबों में। प्रभुपाद जी बोले करोड़ों वर्ष से कैसे भागवत सप्ताह करते रहो, इसका लक्ष्य कैसे पब्लिक को एंटरटेन करो और उनसे कुछ दक्षिणा लेके अपना जीवन सफल करो। तो जिस आदमी का जीवन सफल करना, किसी तरह का इंद्रिय भोग का वस्तु पाना है, वो अपना ऑडियंस को भी खाली एंटरटेन करता रहेगा, अपने शिष्यों को भी एंटरटेन कर, अभी सच नहीं बोलेगा, वो हिम्मत ही नहीं है सच बोलने की उसको। ठीक है, सो दिस इज वेरी क्लियर। सो यू सी द भागवतम इज बोल्ड। प्रभुपाद जी बोलते थे हमेशा भगवान के नाम में विश्वास रखो और प्रीचिंग हमेशा बोल्डली करो, प्रीच बोल्डली अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, और भगवान के नाम में विश्वास रखो। अगर भगवान के नाम में विश्वास है तुम प्रचार कर पाओगे। ठीक है,
So now pravritti nivritti के difference is there because प्रवृत्ति में हम लोगों को इंद्रिय भोग का इच्छा है, तो वेद में भी ऐसा भी मार्ग दिया हुआ है, ठीक है, तुम ऐसा होम करो, यज्ञ करो, इंद्रपुरी पहुंच जाओगे, इस बड़े क्या कहते हैं तरह तरह के भोग के स्थल हैं इस ब्रह्मांड में, वहाँ पहुंच जाओगे, बड़े मज़े करोगे। बहुत लोग बोलते हैं वहाँ अप्सरा मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, चलो। तो ये एक्चुअली भगवत गीता में जब अर्जुन ऐसा चीज़ बोल रहे थे, अरे कृष्ण जी ये तो महापाप हो जाएगा, ये तो पुण्य नहीं है लोगों से युद्ध करना। तो कृष्ण जी क्या बोलते हैं, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रगुण्य भवार्जुना। वेद के 3 गुण के बारे में बोलते हैं, किस तरह मीन्स जो दुनिया जो एक जेल है, किस तरह हम जेल में संतुष्ट हो सकते हैं, ये वेद बताते हैं। श्री राधा गोविंद की। लेकिन याम इमाम पुष्पितम वाचम, जो वेद में ये फ्लावरी वर्ड्स हैं, इसको आप इग्नोर करो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। भागवत इज देयरफॉर धर्म प्रोजित कैतवत्रा। ये चीटिंग रिलीजन से भागवत बहुत ऊपर है। इट इज अबव द चीटिंग रिलीजन्स which are generally given in the society. ठीक है, so this is very interesting area which is come here. So Prabhupada has explained very strongly. कर्म कांडा ज्ञान कांडा केवल विषेर भांडा, बहुत स्ट्रांग शब्द है। कर्म कांड मतलब किस तरह के पुण्य करो, ये करो ताकि आपका बहुत भोग का स्थिति थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। ज्ञान कांड किस तरह तुम ये समझो शरीर नहीं हो, आत्मा हो और इस दुनिया से मोक्ष पाने की कोशिश करो। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेरा भांडा, क्या मतलब, ये जहर के डब्बे हैं, इनको छूने का नहीं है, क्योंकि इनमें डिटेल में फंसे बस उधर ही लगे रहेंगे। कितना लोग पता नहीं आपका बंगाल में, यहाँ तो उसी में फंसे रहते हैं साउथ इंडिया में। ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, इसको नहीं करो ये पाप हो जाएगा, इसको करो ये पुण्य हो जाएगा, कह रहे, क्योंकि अब क्या पाप हो गया तो अरे उसमें तुम्हें दुनिया में बहुत दर्द होगा। लोग इसी में फंसे रहते हैं ज़्यादातर। उधर भी ऐसे ही, बंगाल में भी यही बात करते हैं लोग। जनरली जो वैदिक लोग हैं जिनको भागवत का मालूम नहीं है, इतना ही बोलते हैं, कह रहे, और फिर ज्योतिष के पास जाके पूछते हैं क्या है, कैसे अच्छा होगा, वो अरे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एक यज्ञ करो, पूजा करो, स्थिति को अच्छा कर। हाँ, कवच पहनते हैं तरह तरह, ये अंगूठी पहनो, ये अंगूठी पहनो। जितना पॉलिटिशियन को देखो 15 अंगूठी होता, देखा, 6 उसमें 8 उसमें, इतने पाप करके बैठा रहता है, उसको डर इतना होता है, भय से भरा रहता है। सो कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांडा। तो इधर बोला है नहीं, इन चीज़ों में नहीं फंसो, हमारा जो मार्ग है वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, बैक टू गॉड। किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लो, इस दुनिया में तुम कभी भी खुश नहीं हो सकते। खुश होना है तो वैकुंठ धाम जाना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। ये भागवत का मैसेज है, बहुत रेयर मैसेज है। श्रील प्रभुपाद की। Hare Rama, Hare